یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، نوازشات اعلیٰ حضرت زندہ باد عنایات اعلیٰ حضرت زندہ باد، کرامات اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد، عشق عشق محبت عشق محبت محبت پیار محبت پیار محبت پیار محبت پیار محبت سبحان اللہ، بستی سبحان اللہ، بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب ان سے جلنے والوں کے سب ان سے جلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ، احمد رضا سچے رضا ہم سب کے رضا، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بارش کے ایام دیکھا ہے نا پانی کے بلبلوں کا تیور دیکھا ہے، انداز دیکھا ہے، کیا کبھی نے یہ تصور اور خیال اور ارادہ کیا کہ یہ جو پانی کا بلبلا ہے کم سے کم 10 قدم میرے ساتھ چلے؟ چلتا ہے کیا؟ چند سیکنڈ کے لیے اس کا وجود عمل میں آتا ہے، اپنی جگہ سے سرکتا ہے اور پھر اسی پانی میں مل کر کے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کو یہ پتا نہیں کہ ہم بریلوی جہاں رہتے ہیں ایسے ہی رہا کرتے ہیں، یزیدیت کو دفن کرنا ہم بریلویوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ، بریلوی جہاں بھی تنہا رہتا ہے لاکھوں یزیدی اس سے گھبرایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میدان کربلا سے لے کر کے آج کی بابرکت محفل تک بریلویت ہی بریلویت ہے۔ سبحان اللہ، کربلا مولا سے جو آواز اٹھی میرے دادا نے اٹھائی وہ بھی مشن تھا، آج بھی جو میں اٹھا رہا ہوں یہ بھی مشن ہے۔ کل بھی امام حسین نے اٹھایا وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، اور آج یہاں بریلی جو چل رہا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کے درمیان کیسے پہنچیں، تو مرکز کی جانب نگاہ اٹھا لیں تو لوگوں کے درمیان حاضر ہو جائیں گے۔ ان کو یہ پتا نہیں کہ شہنشاہ ہفتے اقلیم سیدنا تاج الاولیاء کا یہ غلام زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ غلام زندہ ہے۔ بے شک ناگپور میں کسی کی ہمت اور جرأت اور حیثیت نہیں ہے کہ مرکز اہل سنت کی جانب اپنی آنکھ بھی دکھا سکے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کے منہ میں زبان نہیں دی ہے کہ وہ مرکز اہل سنت کی جانب ایک لفظ بھی ادا کر دے۔ میں نے تو لگام ڈھیلی کر کے رکھی تھی کہ دوڑتا کہاں تک ہے، قربان مرشد، مجھے ڈھیلی کرنا بھی آتا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد وجود کو ختم کرنا بھی آتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے چکر میں کوئی نہ پڑے قربان قربان، ورنہ پوری عمر چکر میں پڑا رہے گا، چونکہ ہم غوث اعظم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سلطان الغریب نواز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سیدنا سرکار باسا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم آستانہ فلک مشائخ مسولی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم شہنشاہ ہفتے اقلیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چکر میں ہیں، مفسر قرآن کے چکر میں ہیں، تاج الشریعہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور حضور سیدنا محدث کبیر کے چکر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے نا، میرے چکر میں آنے والا رفو چکر تو ہو سکتا ہے، عمر بھر چکر میں پڑا رہے گا کہ کس شے سے میرا سامنا پڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا اللہ؟ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ یہ سارے جلوے سرکار تاج الاولیاء کے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین، نسبت اگر اس نام کے آگے جو لگی ہوئی ہے، اس انسان کے نام کے آگے کی نسبت کو مٹا دو تو اس کا وجود نہ کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک کے لیے ہو سکتا۔ اس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ نسبت ہی فقط جنت کی نشانی ہے۔ بے شک
समझ रहे हैं ना अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी मस्जिद के मेंबर पर हमें तो ताज्जुब होता है अपनी मसाजिद का इस दौर में हिफाजत करना कैसा चाहिए उन्हें। मुसल्लियान और जिम्मेदारान ऐसे लोग जब खड़े होकर के बकवास करें तो अल्लाह कान पकड़ करके मस्जिद से बाहर कर देना चाहिए। क्या बात है, समझ रहे ना, ये एहसान है। अपने मोहसिन का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत तो हम सब के मोहसिन हैं, कयामत तक के लिए मोहसिन रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और सियादत को लेकर के साथ पूछते किसी की आ जाएं या कब्रों से उठा लाएं, तब भी नुक्ता नहीं रख सकता है सियादत को लेकर के। सुभान अल्लाह, समझ रहे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली की ऐसी टनाटन भरी सिक्के राजुल वक्त की औलाद रूबरू है कि बड़े बड़े आए अल्लाह बौने बन करके चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे ना अल्लाह। अब बड़ों बड़ों को खातिर में नहीं लाए, सुभान अल्लाह। तो इन जूतियों से लगे हुए जर्रात को क्या खातिर में लाएंगे। क्या बात, सुभान अल्लाह। और मरकज की जानिब निगाह उठाने से पहले ये सोच तो लेते कि ताजुल औलिया ने ये नागपुर दिया किसको है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिगरा है, जिगरा। बेशक, अर्ज करना कुछ नहीं बल्कि प्राउड है, जो कुछ भी वो वहां है मकी। शहंशाह हफ्ते करीम की जात है, सैयदना हुजूर पुरनूर ताजुल औलिया की जात है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमेशा इस दौर में, जिस दौर में जब भी कोई शहर में मसला आया तो मेरे बड़े भाई बिरादर अज़्जा पीरे तरीक़त रहबरे राही शरीयत अशरफी दूल्हा हज़रत अल्लामा अल-हाजी शाह मुफ्ती हुसैनी मियां साहब क़िबला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो जिसकी हैसियत न कल थी न आज है न मुस्तकबिल में कभी होने वाली है, अगर उलमा ने ज़बान खोल दी होती तो उसका वजूद उसी वक्त खत्म हो जाता। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस इस बात को लेकर के है कि इस शहर मोहब्बत जो मेरा है, नागपुर शरीफ के तमाम ही उलमा ने अपनी ज़बानों को खामोश क्यों रखा। ये सवाल रहेगा मेरा और मैं उन्हीं से रूबरू हूँ। चंद सेकंड की जो मेरी गुफ्तगू है, समझ रहे ना। हर वक्त वो शहजादे रसूल, हर वक्त उसी का बयान, हर वक्त उसी की तहरीर। अरे लेकिन कम से कम आप लोगों को अगर तैयार किया है तो अपना प्रूफ तो पेश करो। समझ रहे ना लल्ला। बरेलवी बन करके जिंदा रहना है। दुआ करो कि जमीन पर जब तक रहे बरेलवी बन करके रहे और अल्लाह मौत नसीब करे तो मसलके हक बरेलवियत पर अता करे। ये लल्ला उसको शर्म नहीं आई यजीदियत से तशबीह देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं ना, यहाँ महल बनाए हुए लोग मौजूद हैं, जिनका महल मेरे दिलों में है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शेर तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, जो मेरे मोहतरम कारी साहब क़िबला ने पढ़ा है ना, हयात ताजुश शरिया में ही ये फैसला हो चुका है लोगों, हमारा कायद, ऊंचा बोले हमारा कायद, हमारा कायद, हमारा कायद, हमारा रहबर बना रहेगा, हमारा रहबर रहेगा, हमारा रहबर जिया रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सबक अब जब कोई टकराए मरकज के मुतालिक या मसलक के मुतालिक, लल्ला डिग्री देखने का बड़ा शौक जिनको हो ना, वो बरेली न जाए मसौली आ जाए। अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए। जिंदा बड़ा शौक है ना डिग्री देखने का और डिग्रियां दिखाने का। इतनी अगर तमीज होती, इतनी तरबियत होती तो लल्ला अगर वो अपने आप को सुन्नी कहता है तो दिल्ली के अलावा वो कोई दुनिया में सुन्नी रही नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तो बाबांगे दुआ अर्ज करता हूँ, अपना मुल्क भारत हो या दुनिया का कोई भी शहर या मुल्क, बाबांगे दुआ अर्ज करता हूँ कि मैं सയ്यिद हूँ, खुदा की खुदाई में हूँ, लेकिन बरेलवी सയ്यिद हूँ। ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह बरेलवी बन करके मसलके आला हजरत पर चलेंगे इंशाअल्लाह, जिसे कबीर पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और अपना कायद
इंशाअल्लाह हुजूर कायद अहले सुन्नत हैं। बेशक हम किस बेशक जिसका दिल चाहे कान खोल करके सुने, वरना खोलता हुआ तेल कानों में डाल ले। सुभान समझ अल्लाह रहे हैं ना? अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। बरेलवी पूरी दुनिया के तमामी मकतबे फिक्र में वैसे ही जुदा है जैसे रात में आसमान पर निकलने वाला चांद और दिन में चांदनी को फैलाने वाला सूरज हुआ करता है। सुभान अल्लाह बरेलवी वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना बरेली को अलग कर दो तो दुनिया का कोई भी फिरका हकदार नहीं है कि वो ये हक अदा करे और दावे के साथ कहे कि हम जन्नती हैं। बेशक बेशक जन्नती तो हम बरेलवी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझ रहे हैं ना? माज़अल्लाह, अगर ये ज़बान अल्लाहु अकबर के इस दौर में रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर गुस्ताख रसूल कोई है तो हम बरेलवी हैं। अबे औलाद रसूल से तुम ये कहो कि हम अपने नाना की गुस्ताख हैं। अरे हम सच्चों से मोहब्बत करते हैं। नाना से मोहब्बत अहमद रजा ने की और मेरी नस्ल अहमद रजा से कयामत तक के लिए करेंगे। सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने घर जिन सैयदजादों की चादर को ओढ़ करके लोगों को बहकाना शुरू कर रहे हो, बहकाना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वही सैयदजादा मिंबर नूर पर ऐलान कर रहा है। सुभान अल्लाह समझ रहे हैं ना? सुभान अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो सच्चा आशिक है, जो आशिक हजरत अजीमुल बरकत की जात है और उनकी मुक़द्दस फिक्र से जो अपनी फिक्र को रखेगा वो हजरत सैयद आलम इस्लाम की जात हो या मुफस्सिर कुरान की जात हो या ताजुश शरिया की जात हो या हुजूर कायदे अहले सुन्नत की जात हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? अल्लाह का फजल है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौर में मुकम्मल तौर पे बाबर शेर की हैसियत रखने वाली वो जात मुक़द्दस सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर की जात सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ कहाँ पर कैसे हमें ज़बान खोलना है इसका अगर अंदाजा ना हो, तमीज ना हो, तो मुझे लगता है कि तालीम कहीं भी जाकर के हासिल कर ले और कैसे किन लोगों के दरमियान किनके मुताबिक ज़बान खुल रही है, कम से कम अपने कद को निगाह में रख करके अपनी हैसियत के मुताबिक गुफ्तगू करनी चाहिए। जमीन पर खड़े होकर के थूकने चला है आसमान पर होता कि मेरा थूक मेरे ही चेहरे पर आने वाला है वापस, तो कभी ये गलती नहीं करता। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबक याद रखें, हम बरेलवी हैं, बरेलवी। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब आप सब आप सब आप सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन सारे लोगों का तहे से शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने अपने अपने तौर पे खूबसूरत अंदाज में इस महफिल नूर को इनकाद करने में मदद पेश की है। उन सब की खिदमत में बहुत सारी दुआएं पेश करता हूँ। रब ताला सभी को अच्छी अच्छी पोस्ट अता करे, अच्छे अच्छे मरातिब और ओहदे अता फरमाए और सभी की उम्र में सेहत और सलामती, कारोबार और रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह कायदे अहले सुन्नत की जानिब निकाह उठाने से पहले सैयदों से लिपटना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? ये याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ये मत समझना कि हम अगर किसी आले रसूल की तारीफ कर देंगे तो हम उसी में भीग करके बगले की तरफ भूल जाएंगे। नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमा वक्त अगर सुरूर रहता है तो खालिस बरेली का रहता है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना? माशाअल्लाह करोड़ों बार शुक्र एहसान है। आप सबको आबाद रखे। आज आप सब लोगों ने लल्ला आ करके प्रूफ कर दिया है कि हम बरेली से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है लल्ला। और मैं एक बात अर्ज करूं, इस गली का वो परवरदा है ना, इस गली से फकीर को बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ऐसा नहीं है कि हम 2-4-10 साल के बाद आए हैं। अगर एक घर मेरा मसौली शरीफ में है तो दूसरा घर मेरा नागपुर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो दूसरे ही दिन आ जाते जबान खींचने के लिए। अल्लाह अकबर। लेकिन देख रहे थे कितना दौड़ सकता है, ये भी देख रहे थे कि उसकी दौड़ने की क्षमता कितनी है, ताकत और पावर कितनी। समझ रहे हैं ना? वरना हम बरेलवियों का पावर तो माशाअल्लाह देख ही रहा होगा ना। अल्लाह सुभान अल्लाह।
ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. الحمد اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آپ سب کو دادا جان سیدنا غوث الثقلین قطب الدارین کی بارگاہ میں مستجاب اور مقبول آمین مؤدب آمین 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 آمین. تو بس ایک مرتبہ اور ہم یہ شعر حضرت قاری صاحب کی زبانی سنیں گے نا. سبحان اللہ. اور اب اس فرد کا بہت سارے الفاظ مجھے تو اللہ ایسے خارجی باتوں کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے. میں تو صرف پٹرے لے کر کے آیا تھا, کیلوں میں ٹھوکا, ایک چھوٹا سے اسٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا, ریٹائر کر کے آپریشن کر دیا ہے, وداؤٹ اسٹچنگ چھوڑ کے آ رہا ہوں. خاندان کے لوگ اب سے ماشاء اللہ. ایک بار اور شعر سنے.